Hello everyone, myself a first year medical student at Guwahati Medical College, and in this video I'm going to share with you all my NEET journey, how I cracked NEET in my first attempt. So in 11 it is very difficult to manage both school and coaching because I attended coaching classes regularly and school also I was almost regular. Now in green I have shown the good things that I did, that is the that helped me to make progress, and in red I have marked the mistakes that I have made that you need to learn from, and in blue I have written what you need to do. And so now let's discuss. So I used to attend classes regularly, which was a plus point for me, but I could not make out time to revise daily, so I was not able to make 100% of the topic. So what do you learn from this? So you will not get time for everything, so you need to make time for important things. You need to cut off distractions at least for this 2 years or 1 year that is remaining. Give the remaining time to your preparation and you will thank yourself in the future. And since I was not able to revise daily, so there was a lot of backlogs, not in the form of lectures because classes तो मैं रोज अटेंड कर रही थी, but backlogs in the form of revision. मेरा रिवाइज करने का जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे. So I would advise that you revise daily what has been taught in the class that day itself and attend lecture notes से revise करो, then go to questions, because if you don't have hold on the topic then questions बनेंगे नहीं, and questions बनेंगे नहीं then you will get demotivated, right? So it will be better that आप अपने topic को strong कर लो, then you move to the questions and then आपको पता चलेगा questions करके कि कौन सा topic आपका अभी भी weak है and you can make time for that topic. Now बहुत लोग ये कहते हैं कि 11 डिस्ट्रॉयड हो गया, मेरा तो 11 पूरा बर्बाद है, पर क्या सच में ऐसा था? नॉट रियली, क्योंकि कुछ तो पढ़ा था ना 11th में भी, क्लासेस तो अटेंड किए थे. हाँ, बहुत सारी गलतियाँ की थी बट थोड़ा बहुत प्रोग्रेस भी तो किया था, पढ़ाई भी किया था. सो मेन थिंग इज़ दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. मैंने अगर 11 में मिस्टेक्स नहीं किए होते देन आई वुड नॉट हैव learned from the mistakes in 12th, and I would not have been able to crack NEET and JEE and boards all in one go. So the main thing that you need to learn from your as well as others' life is that mistakes से सीखो, because life is too short that you will learn everything by making mistakes. So learn from others' mistakes as well. So 12th went smoother क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कैसे मैं रियली पढ़ाई की जाती है फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर बोर्ड्स. बट येट कुछ कुछ वीक पॉइंट्स थे, जैसे मेरी ऑर्गेनिक बहुत वीक रह गई थी और उन वीक पॉइंट्स में मैंने काम किया इन माई 12th. सो टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, मुझे पता था कि बायोलॉजी बहुत वोलेटाइल है, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं. सो मैंने क्या किया कि मैंने 12th में जो रिवीजन करना है 11 का वो मैंने शुरू किया फिज़िक्स से. मैंने 11 का फिज़िक्स पहले रिवाइज किया, देन केमिस्ट्री. व्हेन आई केम इन 12th, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री मैंने जब रिवाइज किया था ना, ये ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ 11 का रिवाइज करना शुरू कर दिया, ये नहीं. फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने दिया 12th के रिवीजन को. सो मतलब 12th के क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रही थी एंड उसी दिन रिवाइज करने की कोशिश कर रही थी जितना हो सके. एंड फिर इफ़ आई वॉज एबल टू मेक आउट सम टाइम देन आई यूज़ टू रिवाइज 11th का सिलेबस. और 12th के बाद जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया था देन NBTS जैसे NCERT बूस्टर टेस्ट सीरीज़ एक निकला था आकाश का, एंड पूल निकले थे जहाँ पे एवरीडे एक चैप्टर का टेस्ट होता था, एक सब्जेक्ट का, मतलब फिज़िक्स का एक चैप्टर, बायोलॉजी यानी बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों का ही एक एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहते थे. और इसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया मुझे. ये तो नहीं था कि पूरा रिवाइज हो पा रहा था क्योंकि उस टाइम प्री बोर्ड्स एंड ऑल भी चल रहे थे, बट यस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिवीजन हो गया था. एंड
इट मेड ईजियर टू रिवाइज आफ्टर 12th। 11 का रिवीजन भी आसान हो गया था। सो और मैंने कुछ टाइम को यूटिलाइज करने का टेक्निक्स भी यूज़ किए थे, जैसे वाइल ईटिंग आई यूज़ टू लिसन टू ऑडियो बुक्स, या फिर मैं रिवाइज करती थी कोई टॉपिक जो पहले से पढ़ा हुआ है वो वन शॉट देख के रिविजन कर लेती थी। बट हाँ, यू शुड रिवाइज थ्रू वन शॉट, बट फर्स्ट रिविजन नहीं, रिविजन करो वन शॉट से। दैट इज़ पहले ही वन शॉट देखने मत शुरू करो, बिकॉज यू हैव टाइम। सो हर एक चीज़ को कंसेप्चुअली समझने की ट्राई करो। ये मत सोचो कि अगर लॉन्ग लेक्चर अटेंड करेंगे देन टाइम वेस्ट होगा। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऑल्सो, जब मैं क्योंकि मेरा कोचिंग मेरे घर से थोड़ा दूर था, लाइक 45 मिनट्स टू 1 आवर जाने में लगते थे और आने में अप्रॉक्स 1 आवर 30 मिनट टू 2 आवर्स लगते थे आने जाने में। सो आई यूज़ टू रिवाइज फार्मूला शीट या फिर बायोलॉजी रिवाइज कर लेती थी जब मैं जाती थी, और आने के टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत थक जाती थी। तो आई यूज़ टू टेक ए पावर नैप। नो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट डोंट स्किप टेस्ट, कॉज यू विल बी रिवाइजिंग द टॉपिक। क्विकर रिविजन होगा, मोर पावरफुल रिविजन होगा बाय गिविंग द टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के लिए डर रहेगा ना। एंड ऑल्सो यू विल बी रिविजिटिंग द टॉपिक्स थ्रू योर मिस्टेक्स। आप जब मिस्टेक्स करोगे देन आप उस टॉपिक से फिर से एक बार गो थ्रू तो होगे ना। और अगर आप आपके एरर्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग टेस्ट। सो ऑलवेज एनालाइज योर एरर्स। आपके एरर्स को इतने अच्छे से एनालाइज करोगे, नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम पे आ जाए तो फिर आप कर पाओ। अगर सेम टेस्ट तो फिर आप पूरा 100% करेक्ट कर पाओ। ऐसे आपका एरर एनालिसिस होना चाहिए। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू एनालाइज एरर्स, बट कर लो, बिकॉज यू नेवर नो, ये सेम क्वेश्चन जो आप आज स्किप कर रहे हो वो नीट का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट डाउट्स पूछो। ऑनलाइन पूछना है ऑनलाइन पूछो, ऑफलाइन पूछना है ऑफलाइन पूछो। अगर ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो या फिर इंटरनेट का हेल्प लो, पर मेक योर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, ताकि नीट के दिन आपको अपने आप पे डाउट ना हो। तो आप अपने डाउट्स अभी से क्लियर कर लो। और यस, टेक्नोलॉजी है तो अच्छे से यूज़ ज़रूर करो। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द फोन एंड द फोन इज़ नॉट यूजिंग यू। एंड येस, आई यूज़ टू आस्क अ लॉट ऑफ डाउट्स। ये मेरा प्लस पॉइंट था। जब तक कि टीचर ये ना बोल ले कि सेम चीज़ इतना बार पूछोगी या फिर इतना सिली डाउट्स क्यों पूछ रहे हो, तभी भी मैं डाउट्स ज़रूर पूछती थी, बिकॉज आई न्यू दैट एट द एंड ऑफ द डे यही टीचर्स ना मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे जब मैं नीट क्रैक करूँगी। सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बोर्ड्स एंड नीट, इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों बोर्ड्स और नीट सिमिलर नहीं है या कितना सिमिलर है? सो बोर्ड्स एंड नीट में सेम चैप्टर्स है, सेम टेक्स्ट बुक है, सेम कंसेप्ट है। ओनली डिफरेंस इज इन द क्वेश्चन पैटर्न। बोर्ड जो है वो सब्जेक्टिव पैटर्न का है, और जो नीट है या फिर JEE है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है। दोनों के लिए कंसेप्ट इज़ अ मस्ट। बाय हार्ट करने से नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप समझोगे कंसेप्ट को देन इट इज़ गोइंग टू get stored in your long term memory and you will be able to tackle any question, चाहे वो MCQ हो या फिर subjective question हो। but if you are going to just by heart then ये short term memory में ही रहेगा and you will only be able to answer straightforward questions। so ये डिफरेंस है कि फॉर नीट या फिर JEE यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आप ना डायरेक्ट क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। बट बोर्ड्स में आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। जो आपने पढ़ा है वो आपको लिखना आना चाहिए, आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। और अभी तो कंपटीशन बहुत बढ़ ही गया है। सो यू नीड टू गिव योर 100% बेस्ट, देना ही होगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, यू हैव टू रीड। जस्ट नोइंग फार्मूला इज़ नॉट एनफ, यू नीड टू नो फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मैंने कैसे पढ़ा था।
So talking about physics and chemistry, I have already discussed in previous videos. You can go check out those videos. I have given the description. In the description, I have given the link. Now going to biology. So biology तो मेरा खुद का इतना अच्छा नहीं हुआ. So I will be telling you कौन सा मिस्टेक मैंने किया. So the mistake I made is that मैंने NCERT को इतना ज़्यादा मतलब रिवाइज नहीं किया. आई थिंक आई शुड हैव रिवाइज मोर नंबर ऑफ़ टाइम्स. और मैंने क्वेश्चंस भी ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे बायोलॉजी के. और 11th-12th में मैंने मॉड्यूल भी सॉल्व किया था जो आई थिंक वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड NCERT से ही क्वेश्चन आना है बायोलॉजी में. एक दो क्वेश्चंस अगर आ भी रहे हैं आउट ऑफ NCERT देन ऑल्सो इतना टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है रीडिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स. सो बायोलॉजी आप लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर नोट्स पढ़ो, देन रिवाइज NCERT एज मेनी टाइम्स एंड प्रैक्टिस NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ओनली. और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप कर सकते हो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, बट PhD करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ कमिंग टू इंग्लिश. सो यस, अगर आप बोर्ड्स देने जा रहे हो, अगर आप 11th में हो या फिर 12th में हो एंड यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड्स, देन इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. अगर आप रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, देन if you pay attention in the class and understand the chapter, then you are half done. Just read the chapter and before exam see the questions given in the text and the PIQs and you will do it. And yes, you need to be creative. The more creative you are, the more marks they will get in your question answers, right? अगर टेक्स्ट बुक का ही पूरा जो लिखा है वो छाप दोगे, वो तो सारे बच्चे करेंगे ना. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट लाइक more marks. You are going to get average marks. Now talking about if you are not a regular school going student, अगर आप डमी स्कूल में ज्वाइन किया है आपने, देन हाउ टू रीड इंग्लिश. यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे वीडियोस मतलब यूट्यूब चैनल्स है जो आप फॉलो कर सकते हो. और अगर आपको जिस चैनल से समझ में आ रहा है, जिस टीचर से समझ में आ रहा है, आप देख लो एक बार. नहीं तो मैं भी हूँ गाइड करने के लिए कौन से टीचर से मैंने देखा था अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था. देन टॉकिंग अबाउट इलेक्टिव सब्जेक्ट. तो सबका एक अलग इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा. किसी का मैथ्स होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का मेरा तो अल्टरनेटिव इंग्लिश था ना. आई वॉज इन स्टेट बोर्ड, सो मेरा अल्टरनेटिव इंग्लिश था. सो बहुत लोग लैंग्वेज भी लेंगे. सो या आप खुद देख लेना, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं होगा इसके बारे में. नाउ समराइजिंग ऑल द थिंग्स. सो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी या बोल लो माई जर्नी, कैसे मैंने नीट एंड JEE एंड बोर्ड्स क्रैक किया इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. एंड अगर कोई डाउट्स हो तो फिर फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. एंड मुझे तो सिर्फ 666 मार्क्स मिले आउट ऑफ 720. आई विश दैट आपको उससे भी ज़्यादा मिले. सो लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम एवरीवन, लिसन टू एवरीवन बट फॉलो नो वन. आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद एनालाइज करो कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सूट करता है. आप नाइट आउल हो या फिर मॉर्निंग पर्सन हो. सो बेस्ट ऑफ लक एंड रिमेंबर दैट इफ़ योर